बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। नए दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नोटिफिकेशंस को ऑन करें। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बिरूनी, याकूब इब्न इसहाक अल-किंदी, अबू अली हसन इब्न अल-हैशम, याकूब इब्न इसहाक अल-किंदी। Contributions of Abu Ali Hassan ibn al-Haytham. He was a great scholar of physics, mathematics, engineering, astronomy, and medicine. He wrote many books on various subjects. He wrote a book, Kitab al-Manazir, on optics. He invented pinhole camera. He discovered the nature of light and told that it is a kind of energy. He gave formal definition of ray of light. He described luminous and non-luminous objects. He described the working and the internal structure of the eye. अबू अली हसन इब्न अल-हैशम की खिदमात। इब्न अल-हैशम एक अजीम स्कॉलर थे फ़िज़िक्स के, मैथमेटिक्स के और इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी और अद्वियात के। इब्न अल-हैशम ने काफ़ी सारी किताबें लिखी जिनमें मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स शामिल हैं। किताबुल मनाज़िर इनकी एक अहम किताब है। इन्होंने पिन होल कैमरा ईजाद किया। इब्न अल-हैशम ने रोशनी के बारे में बताया कि ये एक एनर्जी की किस्म है, तवानाई की किस्म है। इन्होंने रोशनी के बारे में एक ख़ास डेफिनेशन पेश की कि रोशनी जो है वो एक ख़त में ट्रैवल करती है। इब्न अल-हैशम ने रोशन अजसाम और गैर रोशन अजसाम के बारे में बताया। इंसानी आँख की अंदरूनी साख्त के मुतालिक और उसके अफ़ाल को भी बखूबी तफसील से बयान किया। Contributions of Abu Rehan bin al-Ahmad al-Biruni. He proved practically that the earth was round. He measured the circumference of the earth. He discussed the movement of the sun and the moon. He determined the longitude and latitude of a place. He found the density of various metals. He disclosed that the earth is not stationary but it is floating in space. अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बिरूनी की खिदमात। इन्होंने इस बात को साबित किया कि ज़मीन जो है वो राउंड है। इन्होंने ज़मीन की पैमाइश का तरीक़ा बताया। इसके अलावा इन्होंने सूरज और चाँद की गर्दिश के बारे में बताया। इसके अलावा किसी भी जगह के तूल बल्द और अर्ज़ बल्द की पैमाइश का तरीक़ा बताया। मुख्तलिफ़ धातों की कसाफ़त के बारे में भी इन्होंने बताया। इसके अलावा इन्होंने इस राज से भी पर्दाफाश किया कि ज़मीन जो है वो रुकी हुई हालत में नहीं है बल्कि वो खला में तैर रही है। Contribution of Yaqub ibn Ishaq al-Kindi. He produced many research monographs on meteorology, specific gravity, and on tides. His most important work was on sound and optics. He discovered a method to express musical notes in terms of frequencies. He also discussed the nature of sound. He worked on geometrical optics. One of his work on optics was translated into Latin. He did considerable work on medicine too. याकूब अल-किंदी की खिदमात। याकूब अल-किंदी ने अपनी तहक़ीक़ात मेटरोलॉजी यानी कि महकमे मौसमियात के बारे में, स्पेसिफिक ग्रेविटी और टाइड्स के बारे में, लहरों के बारे में पेश की। इनका अहम काम साउंड और ऑप्टिक्स के बारे में यानी कि आवाज़ और अदसों के मुतालिक है। इन्होंने एक ख़ास तरीक़ा पेश किया जिसके ज़रिए से हम मौसीकी के सुर को पेश कर सकते हैं और उनको फ्रिक्वेंसीज़ में डाल सकते हैं। इन्होंने आवाज़ के मिजाज को तफसील से बयान किया। इसके अलावा इन्होंने तकूनियात में भी बहुत सारा काम किया। मेडिसन में भी इन्होंने खातिर ख़्वाह काम किया है। Dr. Abdul Salam was born in Jang, a small city in Pakistan, in 1926. He was very intelligent from his childhood. He passed every examination with distinction. Because of his good performance in education, he was awarded scholarship for higher studies in UK. He came back in Pakistan in 1950, but he again went to UK to promote his research work. He was awarded Nobel Prize in Physics in 1979 for his work on grand unification theory (GUT). He established International Center for Theoretical Physics at Trieste, Italy, where scientists from the developing countries are provided opportunities to augment their research work in which they are engaged in their own countries by joining with elites of physics
Of course, he was an asset of Pakistan and will remain in the hearts of learning circle. डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान के एक छोटे से शहर जंग में पैदा हुए 1926 में। वो बचपन से ही इंतहाई काबिल थे। इन्होंने सारे इम्तिहानात इम्तियाजी नंबर से पास किए। चूँकि उनकी अच्छी कारकर्दगी की वजह से उनको हायर एजुकेशन के लिए वजीफ़ा दिया गया इंग्लैंड के लिए। 1950 में वो पाकिस्तान वापस आए, लेकिन फिर दोबारा यूके गए अपनी रिसर्च वर्क को दोबारा कंटिन्यू करने के लिए। 1979 में उनको फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया, जो कि ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी के बारे में इन्होंने दिया था। इन्होंने इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स कायम की, जो कि इटली में है, जहाँ तरक्की पजीर ममालिक के साइंसदान तजुर्बात करते हैं और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान के लिए एक असासा के तौर पर जाने और माने जाते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, he was born on 1st April 1936 at Bhopal in India. He obtained MSc Metallurgy degree from Helene. He was selected as a research assistant in the same university. He obtained PhD degree from the University of Leuven, Belgium. He worked as an expert at arrangement plan in Holland as a joint venture of the government of Holland. When Dr. Abdul Qadir Khan, imbued with the supreme spirit of patriotism, he returned to Pakistan to serve his motherland. To honor him, the former Engineering Research Laboratories has now been named as A.Q. Khan Research Laboratories. He has been awarded Hilal Imtiaz by the government of Pakistan. He contributed in making Pakistan a nuclear state. डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1 अप्रैल 1936 भोपाल इंडिया में पैदा हुए। इन्होंने अपने एमएससी मेटलर्जी डिग्री हासिल की हॉलैंड से, और उनको रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर चुना गया उसी यूनिवर्सिटी में। इन्होंने पीएचडी डिग्री हासिल की लीवन बेल्जियम यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ साथ उन्होंने एक्सपर्ट के तौर पर काम किया यूरिंचो एनरिचमेंट प्लांट हॉलैंड में, और जो कि हॉलैंड की गवर्नमेंट की इजाज़त से था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर पाकिस्तान वापस आए और अपनी खिदमात को पाकिस्तान के लिए वक्फ़ किया। उनके एजाज़ में इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ को ए.क्यू. खान लेबॉर्ट्री के नाम से मंसूब किया गया है। इनको हिलाल इम्तियाज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मिला है, और इन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है।